Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग ऑल। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। Okay. Guys, let everyone join, then we'll start. Okay. अच्छा, याद है लास्ट टाइम क्या क्या हुआ था? हाँ सर। क्या 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 हुआ था? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में क्या? ऑसिलेशन, पीरियोडिक मोशन, है ना? रोटेशनल पीरियोडिक मोशन, वाइब्रेशनल पीरियोडिक मोशन, एसएचएम, राइट? और क्या क्या दिया था? एम्पलीट्यूड। और क्या क्या बता? एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके। अच्छा, मैंने ये दिया था क्या, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बताया था आप लोगों को? हाँ सर। हाँ आयुष? नहीं सर। नहीं सर। ओके अभी रेस्टरिंग फोर्स बताया था। ओके। अच्छा, ये इक्वेशन कैसे प्रूव हुआ है? ये अंडर रूट के अपॉन एम, हाँ, ये हो गया। ये हो गया था ना? हाँ सर। ये बोला। So guys, today we'll do the derivation. Okay, write down question. Obtain the differential equation. Obtain the differential equation of linear SHM. Obtain the differential equation of linear SHM. Obtain the differential equation of linear SHM. Write all. सर रिपीट करो। Obtain the differential equation of linear SHM. Obtain the differential equation of linear SHM. याद है linear SHM? Yes or no? हाँ सर. What do you mean by the linear SHM? The particle should be oscillating on a straight line. The particle should be oscillating on a straight path. Yes or no? हाँ So सर। if the particle which should be displaces from point O to P, so here we having a formula. देखो, अगर कोई भी पार्टिकल डिस्प्लेस होगी, so which is restore itself. Yes or no? अपने आप को क्या करेगा? रिस्टोर भी करेगा, right? And here we having a two, and here we having a two amplitude also. Here we having a R, and here we having a two amplitude. Yes or no? एम्पलीट्यूड के बारे में बताया ना आप लोगों को मैंने? हाँ सर। Yes sir. Okay. Draw that diagram. Draw it all. प्रवीण, ऑसिलेशन चैप्टर है, ओके? Yes sir. लिखे सबने?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, here the particle which should be displaces from its mean position O, right? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया हुआ है? x से डिनोट किया है. डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया हुआ है? X. ओके, ये डायग्राम बनाया सबने? हाँ सर. Yes, Write sir. down in next line. By definition, f is equal to minus kx. By definition, f is equal to minus kx. That's our equation number 1. अब पहले समझ लो, उसके बाद लिखो, ठीक है? Now the acceleration of the particle, the acceleration of particle is given by अब guys acceleration का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? acceleration का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था? mg. acceleration का स्टैंडर्ड फॉर्मूला mg है? क्या बोल रहे हो? M alpha. rate of change of velocity per unit Yes. time. क्या हो गया तुम लोगों को? velocity का स्टैंडर्ड फॉर्मूला Displacement upon time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो dv v की जगह पे क्या लिख सकते हैं? dx अपॉन dt, राइट? हाँ सर. So d into d, it will be a d square x upon dt square. Yes or no? Yes, sir. So here we'll get the acceleration, right? Now from Newton's second law, either according to Newton second laws of motion. न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? Come on, speak up. F is equal to m. F is equal to mass into acceleration, right? Yes, sir. So F is equal to m d square x upon dt square. Yes or no? That is our equation number 2. अब यहाँ पे ये याद रखना है, ये जो acceleration है which is representing the double derivative of the displacement, right? All acceleration क्या represent करता है? Double derivative of the displacement, d square x upon dt square. Yes or no? Yes, sir. लिखो यहाँ तक लिख लो. डन ऑल. रब करो ऊपर के स्टेप्स. No, एक sir. मिनट सर. सॉरी, लिखा सब लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 तक? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Force. फोर्स. सो विल कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2. यस और नो? यस और नो ऑल? क्या इक्वेशन होगा? m d square x upon dt square which is equal to minus omega square x,
राइट, नॉट Yes, माइनस sir. ओमेगा स्क्वायर, माइनस के एक्स है ना, माइनस के एक्स। ओके, m को इक्वल के दूसरे साइड लेके जाएंगे, सो दैट विल बी अ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन m इंटू एक्स, राइट। के अपॉन m को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? के अपॉन m को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको इक्वल के दूसरे साइड लेके जाएंगे, सो दैट विल बी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यस और नो? यस और नो ऑल? यस सर। गाइस दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। आज के बाद जब भी मैं आप लोगों से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम के बारे में पूछूंगा, सो आई वांट दैट आंसर। इज दैट क्लियर? दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। Done, sir. डन ऑल? यस सर। रैप करूं? याद रहेगा सबको डिफरेंशियल Yes, sir. इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम? Yes, sir. Yes, sir. क्या इक्वेशन है? D square x upon dt square plus omega square x is equal to अब बोलो वापस। d square x D upon square x dt upon square plus dt square omega plus omega omega square square x x is equal to 0. Where x is equal to अब गाइस मैंने आप लोगों को बताया था a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन याद है? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन m को प्रूव करने के लिए मैंने यूज किया था। यस और नो? Yes, sir. और मैंने बोला था कि इस चैप्टर में हम लोग इस फॉर्मूला को दो डेरिवेशन से फाइंड आउट करेंगे। यस और नो? तो गाइस अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम मिला हुआ है, इसी इक्वेशन को यूज करके आगे हम लोग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के डेरिवेशन करने वाले हैं। सुना आप लोगों ने कौन कौन से डेरिवेशन करने वाले हैं? Yes, sir. कौन कौन से? Displacement, acceleration, velocity. यस, ओके। तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कौन से चैप्टर में मिला था? 11th में। 11th में कौन से चैप्टर्स में मिला था? साउंड में? नॉट साउंड, रिद्धि। motion and plane? मोशन इन प्लेन, डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सुना आप लोगों ने? हाँ सर। Yes, sir. डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिला था ना वहां पे? अच्छा, जो मैंने नोट्स दिए थे उनको रखे हो या फिर उनको फेंक दिए? गाइस नीट और जेडबलई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुन रहे हो आप लोग? नहीं सर रखे। Okay, write down the next question. Using differential equation of linear SHM, using differential equation of linear SHM, using differential equation of linear SHM, derive an expression for, using differential equation of linear SHM, derive an expression for, derive an expression for the acceleration of a particle using differential equation of linear SHM, derive an expression for, derive an expression for the acceleration of a particle, derive an expression for the acceleration of a particle performing SHM, performing SHM, state the condition, state the condition
for minimum and maximum acceleration. State the condition for minimum and maximum acceleration. I repeat everyone. Using differential equation of linear SHM, derive an expression for the acceleration of a particle performing SHM. State the condition for minimum and maximum acceleration. State the condition for minimum and maximum acceleration. Done all? Yes, sir. अब guys आंसर में लिखो from the differential equation of linear SHM is given by SHM कैसे लिखते सर? हाँ क्या हुआ सर आप क्या बोल रहे हैं? SHM के HM? सिंपल हार्मोनिक मोशन पता है? पता है ये वर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन? नो लास्ट लेक्चर नहीं थे आप? लास्ट लेक्चर थे या नहीं? सर आप ये चैप्टर चालू कर रहे लास्ट लेक्चर सर? लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर को चालू किया था मैंने. ओके. आप नहीं थे लास्ट लेक्चर? हाँ सर मैं भी एब्सेंट था सर, मैं बाहर गया था. एक काम करो उस लेक्चर का रिकॉर्डिंग होगा, उस रिकॉर्डिंग को एक बार ध्यान से सुन लेना, ठीक है? एसएचएम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, याद है ना सबको? यस सर. सर आंसर में क्या लिखना है? आंसर में लिखो फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, फ्रॉम differential equation of linear SHM is given by, from differential equation of linear SHM is given by from differential equation of linear SHM is given by, लिखे सबने? Yes, sir. Now let me know the equation of differential equation. क्या था? d square x upon dt square plus हाँ. omega square x is equal to 0. Okay. d square x upon dt square plus omega square x is equal to 0. Yes or no everyone? Yes sir. हाँ सर. Yes. That is the differential equation of linear SHM, right? तो इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं d square x upon dt square which is equal to minus omega square x, right? That is our equation number 1. After that, but in linear motion, linear acceleration formula क्या था? Change in velocity upon dv upon dt. Linear acceleration is given by rate of change of velocity per unit time. Yes or no? यही था? Yes, sir. Okay. तो velocity की जगह पे क्या लिख सकते हैं? याद है ना? Displacement. Displacement upon time. Rate of change of displacement per unit time. So that acceleration which should be replaced with the d square x upon dt square. Yes or no? Yes, sir. That's our equation number 2. Now we'll सर पर substitute. डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट होता है ना? जरूरी नहीं है. डिस्प्लेसमेंट r से भी डिनोट होगा, x से भी डिनोट होगा, d से भी डिनोट होगा. हर जगह पे कंडीशन बदलेंगे. अलग अलग चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट के अलग अलग सिंबल्स होते हैं, ठीक है? तो d square x upon dt square, तो यहाँ पे विल सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. क्या मिलेगा इक्वेशन? a is equal to minus omega square x. Yes or no? Yes sir. Yes. हो गया प्रूफ? हाँ सर. समझ में आए? a is equal to minus omega हाँ, sir. square x. तो गाइज ये तो एक पैटर्न से प्रूफ किया हुआ है. आगे कुछ और भी डेरिवेशंस मिलेंगे जिसको अलग तरीके से भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. मतलब एक वैसा ही डेरिवेशन कराने वाला हूं जैसा कि आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के डेरिवेशन में. सेम वैसे ही फॉर्मेट में होगा. अभी फिलहाल ये लिख लो.
Done, sir. Done all? No, sir. Yes, sir. क्वेश्चन में और भी कुछ फाइंड आउट करने बोला हुआ है, क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया क्या? हाँ सर। क्या? Minimum Minimum and acceleration maximum और maximum maximum acceleration. यस, ये लिख लो पहले फटाफट। हो गया। Yes, sir. हो गया? तो क्या मिला लीनियर एक्सेलरेशन का Done, sir. फॉर्मूला? ऑसिलेशन चैप्टर में लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या मिला है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यस और नो? Yes, sir. माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब गाइस वी नीड टू फाइंड आउट द कंडीशन फॉर मिनिमम एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ जो आप लोगों को मिला, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3, राइट? नाउ फॉर condition for minimum acceleration, condition for minimum acceleration, so minimum acceleration के लिए हम at mean position, in mean position that displacement should be a zero, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. From equation 3 we get, in equation number 3 guys, we are having an equation a is equal to minus omega square. Instead of x, we'll substitute over there 0, right? So 0 multiplied by omega square, it will get a 0. Zero. Zero. मतलब मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या मिला है? Zero. Zero. 0 लिख लो। Done all? Yes, sir. Sir, done. ये कंडीशन किसके लिए था? Minimum Minimum acceleration. Minimum acceleration. Okay, now we need to find out the condition for maximum acceleration, right? So maximum acceleration at extreme position, सर क्या लिखना है? कुछ लिखना नहीं है, पहले मुझे ये बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या यूज करते हैं? X is equal to प्लस माइनस ए, यस और नो? हाँ एक्स इज sir. इक्वल टू Yes, क्या sir. होता है? प्लस माइनस ए। So x is equal to plus minus a, it means which is representing the positive and negative amplitude, yes or no? तो जीरो की जगह पे Yes, क्या sir. होगा? जीरो की जगह पे क्या होगा? Amplitude. Plus minus. प्लस माइनस ए होल स्क्वायर, सॉरी नॉट होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, यस और नो?
प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे मिला है, एट एक्सट्रीम पोजीशन, राइट गाइस। मिनिमम Yes, sir. एक्सेलरेशन जीरो था, मिनिमम एक्सेलरेशन जीरो था, इसलिए उससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन में वी गॉट द इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर इनटू ए, इट मींस इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जनरेट हो सकता है। इज दैट क्लियर? हाँ सर। छापो। Done, sir. डन ऑल। समझ में आया कंडीशन फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या मिला ऑसिलेशन चैप्टर में? माइनस ओमेगा माइनस स्क्वायर ओमेगा एक्स। स्क्वायर एक्स। माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मिनिमम एक्सेलरेशन जीरो है, राइट? और मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या था? प्लस माइनस माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर ए। इंटू ए। Sorry. प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, राइट? Yes, sir. यस अब गाइस जैसा क्वेश्चन आप लोगों ने एक्सेलरेशन के लिए लिखा था, सेम क्वेश्चन लिखो, एक्सेलरेशन की जगह पे वेलोसिटी लिखोगे। सुना क्या करना है? हाँ सर। सेम क्वेश्चन लिखना है, एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखोगे? वेलोसिटी। आप लोगों ने वीडियो ऑन नहीं रखा है आज, क्यों भाई? अहमद, अनुष्का, आयुष, चंदन, धीरज, दिशा, अस्पिता, जयेश, कादिर, करण, खुशहाल, वीडियोस क्यों ऑफ कर रखा है आप लोगों ने? गाइस वीडियोस ऑन करके रखो। अर्जुन, अर्जुन, सब लोग वीडियोस ऑन करके रखो, कोई भी वीडियो ऑफ करके नहीं रखेगा। सुना सब लोगों ने? वीडियो सब ऑन करके रखो। आयुष, चंदन, वीडियोस ऑन नहीं है आप लोगों के भी। जयेश, कादिर, निखिल, प्रवीण, तनिष, वीडियो ऑन करके रखो। आयुष, आपका वीडियो स्टिल ऑफ है। आयुष, क्वेश्चन लिखा सब लोगों ने? हाँ हाँ सर। सर। ओके। अब गाइस सेम आंसर में पहला पॉइंट लिखो, फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, फ्रॉम differential equation of linear SHM,
from differential equation of linear SHM is given by from differential equation of linear SHM is given by लिखे सबने Yes, sir. now Yes, let me sir. know the equation of differential equation of linear SHM क्या था D square x upon dt square plus omega square x is equal to 0 right d square x upon dt square plus omega square x is equal to 0 right Yes, sir. Yes, sir. तो गाइज इनको अगर मैं इक्वल की दूसरे साइड लेके जाऊं तो क्या इक्वेशन मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स Minus. राइट अब यहाँ पे टर्म्स को हम लोग जरा स्प्लिट कर लेते हैं डी अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी को सेपरेट कर देते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स राइट Yes, sir. है ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब क्या वेलोसिटी सो डी वी अपॉन डी टी which is equal to minus omega square x right right everyone हाँ सर यहाँ तक समझे सब यहाँ तक समझ में आया सबको हाँ सर. Yes, sir. okay after that equation guys we need to multiply displacement with numerator and denominator जैसे हम लोग 2 को 3 को मल्टीप्लाइड करते हैं ना वैसे इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए इस लेफ्ट साइड के इक्वेशन में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे ठीक है सो कीप दैट dx अपॉन dt into dv अपॉन dx is equal to minus omega square x दिख रहा है बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dx से मल्टीप्लाइड किया हुआ है दिखाई दे रहा है हाँ सर गाइस वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के टर्म्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं ओके सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी इनटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx को इक्वल के दूसरे साइड लेके जाएंगे क्या होगा v dv which is equal to minus omega square x into dx that is the equation 1 let me know equation 1 तक समझ में आया सबको Yes, sir. लिख लो जयेश वीडियो ऑफ है खुशहाल कोमल वीडियोस ऑन करके रखो कोमल कोमल मरियम प्रवीण साइमा तनिष तनिष आवाज आ रही है आपको यस सर तनिष वीडियो ऑन करके रखो तनिष और साइमा मरियम निखिल गाइस वीडियो ऑफ रहेगा मैं डायरेक्ट लेक्चर से बाहर निकालूंगा आपको अपने वीडियोस ऑन करके रखने हैं ओके Done, sir. Done all. Let everyone complete. If you all done, then let me know. हाँ हो गया सबका रब हाँ करूं सर नेक्स्ट लाइन में लिखो Yes, sir. integrating both the sides of equation 1 integrating both sides of equation 1 integrating both sides of equation 1
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 लिखे सबने? हाँ सर। इक्वेशन 1 को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, राइट? इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेशन कैसे दिखेगा? इंटीग्रेशन वी डी वी विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे, बाहर आ जाएगा। हाँ सर। x इंटू डी एक्स। यस और नो ऑल? समझ में आया स्टेप? Yes, sir. ओके, आफ्टर दैट गाइस फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इसके अंदर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट? राइट ऑल? यस सर। हाँ सर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर पावर में कुछ नहीं है तो पावर में क्या होता है? 1, राइट? सो v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। गाइस प्लस c यहाँ पर इसलिए यूज किया हुआ है ताकि जब भी हम लोग कोई भी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के फॉर्मेट सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी होता है। सुना सबने? तो यहाँ पर हम लोगों ने कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को किससे डिनोट किया है? c से, राइट? ओके सर। राइट ऑल? लिख लो, लिख लो। Yes, sir. Done, sir. डन एवरीवन? यस सर। ओके, एट एक्सट्रीम पोजीशन, अब पहले समझ लो अच्छी तरीके से। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या यूज कर रहे थे हम लोग? माइनस प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। हाँ, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन रिद्धि, हाँ सर, प्लस माइनस ओमेगा ए। प्लस माइनस ए ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाँ, एम्पलीट्यूड, ओके? एंड वेलोसिटी शुड बी ए 0। अब ये वेलोसिटी 0 कैसे मैंने लिखा? आप लोगों ने पेंडुलम देखा हुआ है ना? पेंडुलम देखा है सबने? यस सर। तो गाइस यहाँ पे पॉइंट P और पॉइंट Q ये दोनों क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट? यस सर। अगर कोई बॉडी अपने इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक अगर स्ट्रेट पाथ पे चल के जाए तो कौन सी वेलोसिटी मिलती है? लीनियर होगा या एंगुलर होगा? अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल के इनिशियल से फाइनल Linear तक है। पहुंचेगा Sir, तो लीनियर linear. वेलोसिटी होगी, लिनियर। राइट? और अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे ट्रैवल करके लीनियर मतलब इनिशियल से फाइनल तक पहुंचा है तब कौन सी वेलोसिटी होगी? Angular. वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होगी, राइट? यस सर। हाँ सर। तो गाइस यहाँ पर जब पेंडुलम कैसे ट्रैवल कर रहा है? कर्व पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, हाँ सर। तो फाइनल में कौन सी वेलोसिटी होगी? लीनियर या एंगुलर? एंगुलर। तो Angular. लीनियर वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी? 0 होगी ना, 0। क्योंकि जो बॉडी है वो कैसे ट्रैवल करके गई है? कर्व पाथ पे ट्रैवल करके गई है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे लीनियर वेलोसिटी 0 क्यों लिखा? समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. एक्सट्रीम पोजीशन पे लीनियर वेलोसिटी 0 क्यों हुई? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो कर्व पाथ पे ट्रैवल करके गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, राइट? यस और नो ऑल? यस सर। तो ये समझा आप लोगों को? अभी थ्योरेटिकली दिया हूं, आगे इसको प्रूफ भी कर देंगे, ठीक है? मतलब ये बात तो क्लियर हो गया ना कि एक्सट्रीम पोजीशन पे लीनियर वेलोसिटी क्या मिलनी चाहिए? 0। 0। क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा ट्रैवल करके गया है? कर्व पाथ पे ट्रैवल करके गया है, राइट? हाँ सर। तो अब इस इक्वेशन को विल सब्स्टिट्यूट above equation in equation 2। अब इक्वेशन को कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में क्या मिलेगा? 0
0, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी तो 0 है, पे क्या रखेंगे प्लस माइनस ए, तो प्लस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, यस नो, तो यहाँ पे बचेगा खाली क्या ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, यस नो, यस नो एवरीवन। Yes, sir. सो इफ यू फाइंड आउट दिस सी, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 है, तो इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2, राइट। हाँ सर। सो दैट इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 को आगे हम लोग सब, हाँ हाँ, इक्वेशन 3 फिर से बताओ ना। अरे ये माइनस ये वाले स्टेप को इक्वल के दूसरे साइड लेके गए थे, माइनस में था तो क्या हो गया प्लस हो गया ना, लिख लो और वीडियोस ऑन करके रखो सब लोग। धीरज, धीरज पांडे, डन सर। शिवम मौर्य, आपका भी नहीं है ऑन। गाइस देखो वीडियोस इसलिए ऑन करवा के रख रहे हैं क्योंकि आप के घर से कंप्लेन आया हुआ है कि आप लोग लेक्चर्स में ध्यान नहीं देते, सो इट्स बेटर गाइस कि आप लोग लेक्चर पे थोड़ा ध्यान रखो, समझ रहे हो। इफ यू ऑल डन देन लेट मी नो। हाँ डन सर। रैप करूं। हाँ सर। यस सर, ओके। आगे नेक्स्ट लाइन में लिखो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। 3 को कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 में, दिख रहा है ना। हाँ सर। v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2, राइट। c की जगह पे क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2, यस और नो। यस सर। तो गाइस अब हर जगह से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, yes or no, so keep that v square omega square get common, okay, a square और x square को इक्वल के दूसरे साइड लेंगे। now if we take the square root on both the sides, so v is equal to omega under root a square minus x square, और जब रूट लेंगे तो ये प्लस और माइनस दोनों कंडीशन में आ जाएगा, yes or no। it's our equation number what 4। 4. 4। okay, that is equation number 4। समझा इक्वेशन 4 कैसे आया है। हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। लिख लो। सर एक बार रिपीट करो ना, मेरा नेट चलेगा। अब देखो स्क्रीन पे आपने कहां तक लिखा है पहले ये बताओ मुझे। मेरे जो ऊपर फॉर्म है ना v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3 तक लिखे थे सौरभ। हाँ सर, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, बात में खाली बता दो। हाँ तो सब्स्टिट्यूट करना था इक्वेशन 3 को कहां पे इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 में देखो जहां पे c लिखे हो ना, c की जगह पे क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2, यस और नो। यस सर। तो 2 हाँ 2 को सर। क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे चारों तरफ से, सॉरी दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे, मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ का 2 कॉमन हो जाएगा और इक्वल के दूसरे साइड जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चले जाते हैं, इसलिए कैंसिल कर सकते हो आप इनको डायरेक्ट। सौरभ नहीं समझे। हाँ समझा, फिर कॉमन लोगे ना ओमेगा स्क्वायर को। हाँ ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस में था तो पहले रख लिया और एक्स स्क्वायर माइनस में था इसलिए राइट साइड में रखा, ओके। हाँ सर समझा। आफ्टर दैट वी टुक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो v स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, ओमेगा स्क्वायर रूट गेट कैंसल और रिमेनिंग टर्म स्क्वायर रूट के अंदर,
समझे? हाँ सर। ओके, लिखा सब लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 तक? Yes, sir. हाँ, रूट के अंदर क्यों लिया हमको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को? क्योंकि इनका रूट एक ऐसे नहीं कैंसिल होगा ना। ये रूट कब कैंसिल होता पता है? अगर ये फॉर्मूला ऐसे होता, एक सेकेंड ना, अगर ये ब्रैकेट के अंदर होते a माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता, लेकिन दोनों पे सेपरेट है ना, तो सेपरेट कैंसिल नहीं होते। ओके, यस सर। लिखे सबने? हाँ हाँ, सर। sir. Okay, now we need to find out the condition for minimum and maximum velocities. Yes or no? यस सर। Condition for, सबसे पहले मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। कंडीशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी, अगर हम लोग मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, ओके, सो फॉर मिनिमम वेलोसिटी at extreme position, at extreme position, in extreme position x is equal to, we'll use plus minus a, right? यस सर। Yes. From equation 4, what we get? That v, which is equal to plus minus omega under root a square minus a square. Yes or no? x square की जगह पे क्या हो जाएगा? a square हो जाएगा। हाँ सर। a square 0, a square 0 multiplied by everything get 0. So v minimum is equal to 0. Yes or no? Yes. समझे? मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या मिल रही है? मिनिमम। यहाँ पे प्रूव हो गया, राइट? हाँ सर। लिख लो। Done, sir. Done, sir. समझ में आया? ये स्टेप समझ में आया? देखो, अगर कोई ना कोई इक्वेशन हम लोगों को मिला है, इट मींस मैक्सिमम कंडीशन है, और अगर हम लोगों को 0 मिला है तो मतलब क्या है? मिनिमम कंडीशन है। सुना आप लोगों ने? हाँ सर। डन सर। Done everyone? Shall we move? हाँ सर। Yes, sir. Now guys, we need to find out the maximum velocity. So when we find out the maximum velocity, at that time we'll get the maximum velocity at mean position. It is very common ना, कि अगर velocity extreme position पे minimum है तो जाहिर सी बात है maximum कहाँ पे होगी? मेन पोजीशन। Mean position. So condition for maximum velocity, okay, for maximum velocity, ये maximum velocity हमें मिलेगी mean position पे। कहाँ पे मिलेगी? मेन पोजीशन। At mean position, right? In mean position we'll use the x is equal to 0. तो ये स्टेप क्या हो जाएगा? 0. ओके, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो यहाँ पे रिद्धि, अब देखो ये सेपरेट हो गया ना, तो अब यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल कर सकते हैं, समझे? हाँ सर। तो मैक्सिमम में क्या मिल जाएगा? v max माइनस। ओमेगा इंटू ए। यस और नो? हाँ सर। याद रखना, जब भी कोई भी न्यूमेरिकल देना होगा, जयेश मेरा आवाज नहीं आ रहा है आपको? क्या बात कर रहे हो? बाकी सबको भाई सर आ आवाज रहा आ है। रही है कि नहीं? आ रहा है सर। क्या हो गया जयेश? गाइस यहाँ पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी मिला है, देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या मिला है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या मिला है? प्लस माइनस ओमेगा इंटू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। यस और नो?
यस और नो गाइस? Yes, sir. तो Yes. मतलब V मैक्स और A मैक्स लगभग एक दूसरे से इक्वल है, राइट? सर खाली ओमेगा V मैक्स और एक्सेलरेशन मैक्सिमम ये दोनों एक दूसरे से लगभग सेम है। मतलब यहाँ पर माइक म्यूट पे करो। कौन है ये? माइक म्यूट पे कर लिया करो भाई। मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी दे बोथ आर अप्रॉक्स सेम। ये दोनों ही अप्रॉक्सली एक दूसरे से क्या है, सेम है। मतलब इन दोनों से रिलेटेड कंडीशन जनरेट हो सकता है। मतलब नीट और जेडब्ल्यू में डबल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल जनरेट हो सकते हैं। सुन रहे हो आप लोग? हाँ सर हाँ सर। लिखे सबने? यस सर Yes, समझ में आया? sir. डेरिवेशन समझ में आया? हाँ सर. आगे बढ़ जाए। अभी तक कौन कौन सा डेरिवेशन हम लोगों ने ढूंढा? एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, Velocity. अब कौन सा? Displacement. डिस्प्लेसमेंट। सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम नहीं लिखना, मैं बताता हूं, मैं डिक्टेट करता हूं। राइट डाउन क्वेश्चन। यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, using differential equation of linear SHM, using differential equation of linear SHM, obtain an expression for displacement, obtain an expression for displacement of a particle. I repeat everyone, using differential equation of linear SHM, obtain an expression for displacement of a particle performing SHM, discuss the formula when particle starts mean position and extreme position respectively. I repeat, discuss the formula when particle starts from mean position and extreme position respectively. Discuss the formula when particle starts from mean position and extreme position सर पूरा respectively. एक बार रिपीट करो ना धीरे थोड़ा. Using differential equation of linear SHM, obtain an expression for displacement of a particle performing SHM. Discuss the formula when particle starts from mean position and extreme position respectively. Discuss the formula when particle starts from mean position and extreme position respectively. लिखे सबने? हाँ सर Yes, sir. Mean position and Mean position and extreme position respectively. लिखे सबने? yes, sir. आंसर में पहला पॉइंट लिखो, from differential equation of linear SHM, is given by लिखे सबने? Yes or no? Yes, sir. Okay. अब लिखना नहीं है डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। पहले मुझे बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम का फॉर्मूला क्या है? d square x upon dt square plus omega square is equal to 0. d square x upon dt square plus omega square x is equal to 0, right? Yes, sir. Yes or no all? अच्छा एक बात बताओ मुझे, अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम के कितने फॉर्मूलाज मिले हैं?
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम के कितने फॉर्मूलाज मिले हैं? सही सुन रहे हो आप लोग, सही क्वेश्चन है। एक Sir, कितने 3. क्वेश्चन, कितने इक्वेशंस मिले हैं गाइस? 3 One. इक्वेशंस मिल चुके हैं। कितने इक्वेशंस? Sir, 3. 3। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम की हेल्प से हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था, यस और नो? Yes, sir. Velocity. फिर हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया? वेलोसिटी। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के इक्वेशंस भी तो डिफरेंशियल टर्म में ही आ गए ना, यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। अब अगर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन फाइंड आउट करना है और हम लोग शुरुआत करेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 से, तो गाइस सोचो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। फिर वापस हम लोग को क्या ढूंढना होगा? एक्सेलरेशन, फिर हमें ढूंढना होगा वेलोसिटी, फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, यस और नो? Yes, डायरेक्ट sir. डिस्प्लेसमेंट तो हाँ, मिलेगा सर। नहीं, लेकिन इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम है, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन, फिर वेलोसिटी, अगर तीनों रिलेशन को मैं देखूं तो डिस्प्लेसमेंट का सबसे क्लोज रिलेशन किससे है? Velocity से। वेलोसिटी वेलोसिटी से, यस और नो? हाँ है ना? Yes, सर। sir. मतलब वेलोसिटी से सबसे क्लोज रिलेशन है, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन से है, और सबसे लास्ट में किससे है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 से, यस और नो? Yes, हाँ, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम है उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सुना सबने? क्या यूज करेंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर ऑल? मतलब हाँ हम सर। लोग वेलोसिटी के इक्वेशन को यूज करेंगे क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिलेशन से काफी क्लोज्ड है, और दूसरी बात यहाँ पे प्लस और माइनस यूज नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि फिजिक्स में प्लस और माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो करते हैं, याद रखना। प्लस और माइनस साइन कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में यूज नहीं करना है जब तक कि न्यूमेरिकल में पोजीशन नहीं पूछा है। अगर न्यूमेरिकल में पोजीशन पूछेगा तो प्लस माइनस यूज करोगे, अदरवाइज यूज नहीं करोगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. ओके, तो आप लोगों ने आंसर में लिखा था फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। हाँ सर। ओके, सो उसके नीचे क्या होगा? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब पहले समझ लो, उसके बाद लिखो। बट इन लीनियर मोशन, बट इन लीनियर मोशन that velocity which is equal to displacement upon time, yes or no? yes, sir. तो Yes. वेलोसिटी की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स dx upon dt which is equal to omega under root a square minus x square, yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, अब गाइस क्या करेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट के सारे टर्म को एक साथ लिख लेंगे, मतलब dx अपॉन अंडर रूट a square minus x square which is equal to omega into dt, yes or no? Yes, sir. है ना? समझ में आया क्या किया? इस पूरे स्टेप को डिनोमिनेटर में लेके आए और ए dt को क्या किया? न्यूमरेटर में लेके गया। समझे? समझे हाँ सब? सर। हाँ सर नाउ गाइस विल डू द इंटीग्रेशन। क्या करेंगे हम लोग? Integration. इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स, राइट? अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग तो क्या इक्वेशन दिखेगा? इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओमेगा कांस्टेंट है अंडर रूट dt, इंटीग्रेशन dt, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आए यहाँ तक स्टेप? हाँ, sir. हाँ सर। लिख लो। मीत, आयुष, रिद्धि, Yes, sir. आफ्ताब, हाँ सर समझा, हाँ, सौरभ, sir. धीरज,
हाँ सर। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। कादिर, ओम, निर्मिति, निखिल, प्रांजल, प्राची, ओमकार, रजत। Yes भाई sir, जिनका follow. नाम नहीं लिया है तो वो लोग भी बोल सकते हो वहाँ। धीरज बोलता है बोलो सर। अरे धीरज, समझ में आया? कब से बोल ही तो रहा हूँ। ये पॉइंट समझे या नहीं? ओके ओके। ओके, अब लिख लो ये सब कुछ। डन सर। समझे सब? हाँ हाँ सर। सर। अब गाइस इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उसके पहले अच्छा मुझे बताओ, आप लोगों का मैथ्स में इंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुका है क्या? नो। No sir. नहीं सर। नो नहीं स्टार्ट सर। हुआ है? लॉगबुक है? हाँ सर। हाँ सर। लॉगबुक में एक फॉर्मूला आपको मिलेगा। ये देखो, ये वाला दिख रहा है इक्वेशन? ये वाला इक्वेशन दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। लॉगबुक में देखो, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इंटीग्रेशन में चले जाओ, इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला दिखाई देगा आप लोगों को। फॉर्मूला वाला लॉगबुक है आप लोगों के पास? सर अभी नहीं। अभी नहीं है? No sir, नहीं है. नो सर नहीं है। मतलब फॉर्मूला वाला लॉगबुक ही नहीं है कि मतलब ये फॉर्मूला ही नहीं है लॉगबुक में? Sir वो भी नहीं है. सर क्या पता, देखना पड़ेगा सर। अरे तो फिर देखो भाई, देखने ही तो बोल रहा हूँ। देखने ही तो बोला है मैंने। इंटीग्रेशन में, नहीं सर, इंटीग्रेशन में सामने ही मिल जाएगा आप लोगों को। सॉरी। ओके, मैं लिख दूं फॉर्मूला? हाँ सर। देखो, जब भी इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है, तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं इक्वेशंस को साइन इनवर्स x अपॉन ए को। समझे? ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है। अगर आपके पास लॉग बुक या फिर इंटीग्रेशन का आप लोग मैथ्स में देखोगे ना, तो फॉर्मूला का चार्ट वहां पर आप लोगों को दिख जाएगा। तो ये फॉर्मूला जहां पर भी ये दिखता है इंटीग्रेशन का ऐसा वाला स्टेप, याद रखना ये फॉर्मूला है, ठीक है? इट इज जस्ट फॉर फॉर्मूला। तो जब ये फॉर्मूला हम लोग इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे यहाँ पे, समझ रहे हो? तो इक्वेशन कैसे दिखेगा? दैट साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस अल्फा। यहाँ पर अल्फा को हम लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी ही कहेंगे। इंटीग्रेशन का ये भी कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी ही है। जरूरी नहीं है हर जगह हम लोग सी को ही यूज करें। ये कांस्टेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सुना सब लोगों ने? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। गाइस वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हियर। सो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले साइन को इक्वल के दूसरे साइड भेज देंगे। साइन को इक्वल के दूसरे साइड भेजोगे, क्या मिलेगा? x अपॉन a विच इज इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। यस और नो? एंड इफ यू फाइंड आउट द x, तो a को भी इस साइड भेज देंगे, a sin omega t plus alpha. Right all? That is the standard Yes equation. sir. It is our equation number 2. ये डिस्प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, x is equal to a sin omega t plus alpha. Guys ये फॉर्मूला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे आप लोगों को तो डेरिवेशन में काम आने ही वाला है, ऑसिलेशन में। सिमिलरली ऑसिलेशन के साथ साथ ये सुपरपोजिशन नाम के भी चैप्टर में आप लोगों को हेल्प करेगा। आगे वेव ऑप्टिक नाम के चैप्टर में भी हेल्प करेगा। उसके आगे आप लोगों को एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिया,
फिर EMI चैप्टर, AC सर्किट, ये सारे चैप्टर्स में ये फॉर्मूला आप लोगों को दिखाई देता रहेगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा कहाँ से आया और कैसे प्रूव हुआ है। ओके, यस सर। समझ में आया इक्वेशन? हाँ सर। यस सर। लिख लो। डन सर। ओके, लेट Yes, एवरीवन sir. कंप्लीट। समझ में आया फॉर्मेट कैसे आया? हाँ सर। आगे बढ़े गाइस। हाँ सर। ओके, आफ्टर दैट इक्वेशन नंबर 2 एवरीवन। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में कुछ और भी दिया हुआ है, देखो जरा। मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन फाइंड करो। क्या फाइंड आउट करना है मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन से? फॉर्मूला ढूंढने बोला है ना। डिस्कस द फॉर्मूला व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। यस और नो? यस यस और सर। नो ऑल? तो गाइस इक्वेशन नंबर 2 के बाद ये लिखा सब लोगों ने, इक्वेशन 2 रब कर दूं? इक्वेशन 2 तक सबने लिखा? हाँ सर। हाँ सर। एक सेकेंड, आप लोग नेक्स्ट लाइन में लिखो, when the particle starts from mean position, when the particle starts from mean position, लिखा सब लोगों ने when the particle starts from mean position? यस सर। ओके, हाँ सर। अगर गाइस पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। 0। अब ये याद रखना, पार्टिकल चाहे मीन पोजीशन से स्टार्ट हो चाहे एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो, हमेशा टाइम 0 होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होगा तो वो क्या होगा? उसका टाइम क्या होगा? 0। 0। मतलब जब आप काम करना शुरू करोगे तब वो आपका टाइम कैलकुलेट करेगा, मतलब उस पर्टिकुलर वर्क का टाइम कैलकुलेट करेगा। लेकिन अगर बॉडी रेस्ट पे है तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग वहां पे हम लोग टाइम को क्या इमेजिन करते हैं? रेस्ट पे, मतलब 0 पे। इज दैट क्लियर ऑल? यस यस सर। सर। ओके, सो x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। यस और नो? अब याद रखना ये t इज इक्वल टू 0 हर जगह होगा। मतलब जैसे अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है तो x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर एक्सट्रीम पोजीशन हुई तो वहां पर भी टाइम 0 ही होगा। समझे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो मेन पोजीशन से स्टार्ट हो चाहे वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो, टाइम इज ऑलवेज 0। ओके, यस समझे ये सर। पॉइंट मैंने क्या बोला है? स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी हो, टाइम 0 से ही स्टार्ट होगा। ओके, आयुष, रिद्धि, हाँ सर। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? देखो अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a लिखेंगे। यस और नो? बट वो भी तो एज ए, वो भी तो एक टाइम, एक वो भी एक स्टार्टिंग पॉइंट को ही बिहेव कर रहा है ना, तो वहां पर भी टाइम क्या होगा? 0 होगा। समझे? मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हुआ तो 0 होगा, चाहे वो कोई भी पोजीशन हो, चाहे मीन हो चाहे एक्सट्रीम हो। इज दैट क्लियर ऑल? हाँ सर, समझा। ओके, आफ्टर दैट गाइस x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। सो इन इक्वेशंस को हम लोग कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। सो यूजिंग इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या मिलेगा? दैट 0 विच इज इक्वल टू a sin 0 प्लस 0। यस और नो? तो a को इक्वल के इस साइड लेके आऊंगा, 0 डिवाइड बाय a विच इज इक्वल टू sin 0। सो 0 इज इक्वल टू sin 0।
yes or no? yes or no all? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर साइन जो है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे अल्फा रहेगा, हाँ, अल्फा 0 नहीं होगा, हाँ सर, अल्फा है। ओके, अल्फा किसकी जगह पे है? एंगल की जगह पे है, राइट? अल्फा किसकी जगह पे है? हाँ सर, एंगल। एंगल। मतलब साइन के साथ हमें ऐसा एंगल यूज करना है जिससे साइन 0 मिले। तो साइन 0 कब देता है? किस एंगल पे साइन 0 मिलेगा? 30। 30? क्या बोल रहे हो दी? 0 एंगल पे साइन 0 देता है। 90 साइन Yes, sir. 91 होता है बच्चों, साइन 91 होता है ना। साइन 0। अगर अल्फा की जगह पे मैं 0 एंगल रख दूं तो साइन 0 0 होता है। सुना सब लोगों ने? सो अल्फा को अगर मैं 0 रख दूं तो साइन 0 क्या मिलेगा? 0, राइट? यस। समझे या नहीं ये स्टेप? अगर सर। अल्फा एक एंगल है, ठीक है, एंगल की जगह पे है, तो अगर मैं एंगल की जगह पे 0 रखूं तो साइन 0 डिग्री क्या रिप्रेजेंट करता है? 0। समझे सब? हाँ सर, समझा। नाउ सब्स्टिट्यूट alpha is equal to 0 in equation 2. So what we get? X is equal to a sine omega t plus 0. So our equation will look like a x is equal to a sine omega t. That is our equation number 3. मतलब पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t. सुना सब लोगों ने? डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला क्या होगा? ए साइन प्लस 0 है? अरे x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। सुने? हाँ क्या सर। होगा? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ए साइन ओमेगा टी। ध्यान से। लिख लो। सर लेक्चर कितने बजे तक है? क्या करोगे पता करके? हाँ, आप लोगों को मैसेज आता है लेक्चर कितने बजे तक है? नो सर 1.5। 8 PM तक है भाई। सर 8 बजे अभी खत्म हो जाएगा सर, 6:30 को चालू होना। थैंक यू सर। क्या करोगे? घर पे ही तो हो। सर ऑफलाइन नहीं रहेगा सर, तो अच्छा पर नहीं होगा। घर पे भी काम होता है सर। वाह, घर पे काम होता है। क्या काम करते हो तुम लोग? हैं? सही बोला जाए, शादी में आना, शादी करने वाला ही। अबे घर पे तुम लोग कौन सा बर्तन धोता है? शादीशुदा लोगों का दिक्कत ही अलग है। हाँ? काम होता है नहीं घर पे। सर, बहुत काम रहता है। अरे भाई फिलहाल तो तुम लोग अपने पढ़ाई का काम संभाल लो, यही बहुत मेहरबानी होगी। दूसरे काम नहीं करोगे चलेगा, समझ रहे हो? अरे बस करो भाई, तुम लोग तो शुरू हो जाते हो। बस भाई बस। ओके, ये लिख के हुआ? ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग घर का भी काम करते हो, लेकिन फिलहाल तो अभी आप लोगों का स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। ओके, यस सर। ये रब कर दूं? लिखा है नहीं? हाँ सर, लिखा। हाँ सर लिखा। ओके, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखोगे? एक्सट्रीम पोजीशन। When particle starts from extreme position, yes or no? यस सर। Guys, if particle starts from extreme position, okay, अगर particle extreme position से start होगा, so
x is equal to plus minus a will use, yes or no, at t is equal to 0, right? Yes, है ना, sir. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी हो, चाहे मेन पोजीशन हो चाहे एक्सट्रीम पोजीशन हो, द टाइम इज ऑलवेज 0, क्योंकि वो स्टार्टिंग है, वहां पर अभी कोई वर्क शुरू नहीं हुआ है। जैसे वर्क शुरू होगा तो टाइम भी कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। ओके, अगेन विल यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 यूज करेंगे, क्या मिलेगा, x की जगह पे विल कीप प्लस माइनस a इज इक्वल टू a sin 0 plus alpha, right? Where a will get cancelled, here will remain only plus minus 1 is equal to sin alpha, right? अब देखो अल्फा की जगह पे ऐसे एंगल यूज करने हैं हमने जो एक बार 1 रिप्रेजेंट करे और एक बार -1 रिप्रेजेंट करे। 9 और 1 minus 1, sorry 9 और 180, क्या 9 रिद्धि? 90, sorry 90. 99. ध्यान से, मतलब अल्फा की जगह पे अगर मैं पाई बाय 2 यूज करूं मतलब 90, तो साइन 90 विल बी अ 1, यस और नो, यस और नो ऑल। और अगर हम लोग 3 पाई बाय 2 यूज करें, क्या 3 पाई बाय 2, मतलब अगर हम लोग साइन 270 चेक करें तो साइन 270 -1 मिलता है, यस और नो, हाँ सर। मतलब साइन 91 और साइन 270 क्या मिलेगा, -1, यस और नो ऑल। हाँ सर. So we'll substitute equation 2, एक सेकेंड है, substitute alpha is equal to pi by 2 in equation 2, yes or no? substitute करेंगे क्या मिलेगा, x is equal to a sin omega t plus pi by 2। इसे देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, इसे देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? किसी फॉर्मूला के बारे में, आयुष, रिद्धि, मीत, सौरभ, किसी फॉर्मूला के बारे में याद आया? सर ये भी 11 से रिलेटेड है क्या? नहीं यार, ये बेसिक मैथ्स है, ये तो बेसिक मैथ्स है। नहीं सर, मैंने मैथ्स नहीं लिया है तो इस साइन थीटा प्लस 90, रिमेंबर साइन थीटा प्लस 90 इज व्हाट, cos theta. cos थीटा ना, तो यहाँ पर विल यूज x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, that is the our equation number 4। if particle starts from extreme position, at that time we'll use the formula x is equal to a cos omega t। सुना सब लोगों ने? मतलब डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन में we got the 3 formulas, one is standard, x is equal to a sin omega t plus alpha, and when the particle starts from mean position, at that time x is equal to a sin omega t, and if particle starts from extreme position, that should be x is equal to a cos omega t। is that clear all? हाँ हाँ सर. ये 3 फॉर्मूलाज मिले हैं गाइस डिस्प्लेसमेंट में, जैसा जहां पर पूछा जाएगा आप लोग वैसे इक्वेशंस को यूज करोगे। इज दैट क्लियर ऑल? Yes sir. Yes, अब गाइस sir. ये ध्यान रखना है आगे कि आगे आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डेरिवेशंस दिखाई देंगे जहां पर आप लोगों को ट्रेस करना होगा कि कहां पे मीन पोजीशन यूज करना है और कहां पे एक्सट्रीम पोजीशन, और उसके बिहाफ पे आप लोग डेरिवेशन सॉल्व करोगे। सुन रहे हो आप लोग? हाँ सर. तो गाइस ये फॉर्मूलाज आप लोगों को याद होने जरूरी हैं, ठीक है? सर हाँ, जो वेव में साइनसॉइडल करके था 11 में, यही है ना डिस्कशन, यही वाला है ना? हाँ याद करो, साइनसॉइडल था ना,
वहां पे साइनसॉइडल का एक फॉर्मूला भी दिया हुआ था, रिमेम्बर? क्या फॉर्मूला हाँ था? सर x इज इक्वल टू, हाँ ओमेगा हाँ टी प्लस एक्स हाँ एक्स ना, अल्फा सॉरी हाँ, अल्फा। अल्फा और माइनस के एक्स भी लिखा हुआ था, तो माइनस के एक्स क्या था? रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला था, और ओमेगा टी प्लस अल्फा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टर्म में जनरेट हुआ है। मतलब यही फॉर्मूला यहाँ वहां पे यूज किया हुआ है साइनसॉइडल में, ये x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये जो इक्वेशन नंबर 2 देख रहे हो ना आप लोग, हाँ सर। यही यूज किया हुआ है। मैंने शायद उस टाइम पे आप लोगों को बोला था कि इस फॉर्मूला को हम लोग 12th में प्रूफ करेंगे ऑसिलेशन चैप्टर हाँ में। सर। आई होप अगर किसी को याद हो तो। हाँ सर। बाकी सब तो गजनी है, उनको तो कल की बात याद नहीं रहती है। नहीं हाँ सर, याद था ये भी। चलो अच्छी बात है। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं घर पे? यस सर। हाँ सर, हाँ 3 सर। बार। गाइज इतना याद रखना कि अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो सारे डेरिवेशन को ऑनेस्टली रिवाइज जरूर करना, और जो ड्यूरिंग द लेक्चर टाइम पास कर रहे हैं, याद रखना बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा आप लोगों को, जो भी है। तो हो सके तो एटलीस्ट वो काम मत करो। सर हाँ रिद्धि, सर वो रोटेशनल में ना मुझे थोड़े क्वेश्चंस में डाउट है, मतलब क्वेश्चन अभी मेरे पास नहीं है, बाद में भेजो आपको वरना मैम। हाँ 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 चलेगा चलेगा, नहीं तो लेक्चर में ही ले आना, कल लेक्चर है मेरा, क्लियर कर लेंगे। क्या ठीक है पॉइंट पे, सर। मतलब किस में सर डाउट है? नहीं, रोटेशनल में ही है वो क्वेश्चन, अलग से है, मतलब पीडीएफ फॉर्म में है मेरे पास, वो पूछना ओके था। ओके ओके, ठीक ठीक। हाँ सर। चलेगा चलिए, ये लिख लिया सब लोगों ने? हाँ सर। यस सर। समझ Yes. में आया सबको? डेरिवेशन समझे सबने? हाँ ये सर। सुनो एवरीवन, अब जिसे जो भी डाउट है वो देख लो, पूछ लो, ओके? जिसे जो भी डाउट है ओके वो पूछ सकते हैं। पहले एक बार देख लो सारे डेरिवेशंस, थोड़े ज्यादा डेरिवेशंस हो गए हैं आज, बट स्टिल आप लोगों की कैपेसिटी है उतनी, पढ़ सकते हो उतना। एक बार गो थ्रू करो एंड लेट मी नो कि क्या डाउट है, वो डाउट क्लियर कर लेते हैं, ओके? बोलो हाँ। हाँ हाँ सर। देख लो, 4-5 मिनट है तो यूटिलाइज हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। मीत, सौरव, आयुष, यस सर। हाँ सर, नो डाउट। हाँ सर, नो डाउट। देखे सारे डेरिवेशंस देखे आप लोगों ने? हाँ सर। क्या लगता है कितना टाइम जाएगा कंप्लीट करने में? देखो अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ सको ना तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ, अगर साथ साथ में पढ़ के खत्म कर रहे हो तो समझ जाओ कि आप लोग सही स्पीड से चल रहे हो, और जो लोग बाद के लिए छोड़ रहे हैं ना, याद रखना उनको भारी पड़ेगा ये सब कुछ। क्योंकि कितना छोड़ोगे, कितना सारा सिलेबस एक साथ कवर अप कर लोगे? जो लोग एक दिन में एक चैप्टर नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो एक दिन में 10 चैप्टर कर लेंगे? क्या है पॉसिबल? नो सर। नॉट पॉसिबल गाइस। और अभी दिन भर में कितने घंटे के लेक्चर हो रहे हैं आप लोगों के, बताओ मुझे। सर 4। सर स्कूल का सर 5 आवर्स, सॉरी अच्छा। कॉलेज का सर, और क्लासेस का फिर शाम को सर, डायरेक्ट फिर रात को टाइम मिलता है सर।
ठीक है ना, थोड़ा आराम करके थोड़ा टाइम निकाल लिया करो। देखो सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को लगता हो कि लेक्चर से ही खाली आप लोगों का भला हो जाएगा तो क्या पॉसिबल है? नो सर। सब कुछ लेक्चर से ही नहीं होंगे गाइस, थोड़ा बहुत आप लोगों को भी इनिशिएटिव लेना होगा, समझ रहे हो आप लोग? तो हो सके तो थोड़ा सेल्फ स्टडी करने का ट्राई करो आप लोग। ओके हाँ सर। हाँ सर। ओके गाइस, देन विल स्टॉप हियर। बाय सर। डाउट है तो क्लियर करो, नहीं तो Bye, जा sir. सकते थैंक यू। जा सकते हो, जा सकते हो। हाँ 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 रोटेशनल डायनामिक्स जो है हाँ उसमें हम लोग देखो स्फीयर वाला कर रहे थे, रोलिंग मोशन में। हाँ तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन है ना के स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या था 2r² था कि 2πr² था? 2/πr²। एक सेकेंड ना, सॉलिड स्फीयर के लिए था के स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2/5r², ये था। सॉलिड सिलेंडर के लिए था के स्क्वायर विच इज इक्वल टू r²/2। रिंग के लिए था के स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये तीनों को ही हम लोगों ने प्रूव किया था, याद करो, हाँ सर। है ना? प्रूफ किए थे ना? हाँ सर, मैंने गलती से ना वो सॉलिड स्फीयर का r² नीचे लिख दिया था, वही कंफ्यूजन हो रहा था। ओके ओके, अभी क्लियर है? हाँ सर, थैंक यू। ओके, बाय ऑल, बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक Bye, यू। Bye, sir. sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर। बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। बाय।